Bismillahirrahmanirrahim. A bag contains 24 colored beads. Some are red, some are blue, and 10 are yellow. One bead is picked at random from the bag. Find the probability that the bead is yellow. So that will be 10 by 24. Okay. The bead is not yellow. So not yellow means 1 minus 10 by 24. That will be 14 by 24. Okay. Another bag contains 5 green, 6 white, and 4 black. Mira picks 2 marbles at random from the bag without replacement. Find the probability that the first marble is black and the second marble is white. Now, in this case, we're having a proper sequence. ठीक है उसने एक ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर में हमने लिखना है. So what is the probability that the first marble is black? How many blacks we were having? 4 out of 5, 6, 11, and 4, 15. 4 out of 15 and means multiply. The second marble is white and without replacement है ये चीज. So हमारा sample space क्या हो जाएगा 14 and second marble must be white और वो 6 थे हमारे पास. So this will be our answer. इसको मतलब आप कर लें 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 2s are 6, 3 5s are 15. 2 2s are 4 हो जाएगा और 5 7s are 35. So 4 by 35 will be the answer in the simplest form. ठीक है. Okay. Both marble have different colors. Now both marble have different colors means या अगर हम ये करें both marble have same color. एक जरा चीज देखते हैं. सेम कलर की निकाल लेते हैं और फिर उसको माइनस कर देते हैं 1 से. ये भी दो है. तो सेम कलर क्या होगा? फर्स्ट भी ग्रीन आए और सेकंड भी ग्रीन आए. देखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट है. मैं सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ. सेम कलर probability that the first one is green, second is green, plus probability white, white, plus probability black, black. तो याद रखिएगा इसमें हमारा सीक्वेंस नहीं होता. जब सेम चीजें लिखी हुई होती है ना तो हमने सीक्वेंस मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना होता. ये बस ध्यान में रखिएगा जब भी सेम हमारे पास होती है. सो ग्रीन एंड ग्रीन 5 by 15 times 4 by 14. यही है ना विदाउट रिप्लेसमेंट है. ये हो जाएगा 6 by 15 times 5 by 14 plus 4 by 15 times 3 by 14. So we go all of the probabilities which are of like same color. ये सेम कलर की हैं. अब इसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं. लाइक इन प्रोबेबिलिटीज को आप यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1. तो सारे 15 14 है तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? Okay, so that'll be 1 minus 50 and 60 divided by 210. So yeah, that will be the answer. Or you can still simplify it 74 over 105, I think so. Yeah. See, तो ये आपके पास सिनेरियो है. अब यहाँ पे आपने खुद चीजें पिक करनी है जो आपके पास सिंपल हो. ठीक है. एक बच्चा डिफरेंट कलर से भी जा सकता है, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट कलर में फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. व्हाट इफ एक कोई डिफरेंट कलर से चला गया? एक मिनट में भी जरा वो भी इंटरटेन कर लूं. डिफरेंट कलर क्या होगा? ग्रीन वाइट और वाइट ग्रीन. अब इसमें सीक्वेंस मैटर करेगा. फिर आएगा हमारे पास वाइट ब्लैक और ब्लैक वाइट. और फिर हमारे पास होगा ब्लैक ग्रीन और ग्रीन ब्लैक.
ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाइट और वाइट ग्रीन है ना, ये एक ही तरह के होंगे, सिर्फ आपने 2 मल्टीप्लाई कर देना इनके साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट फाइंड आउट द वन एंड मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि दोनों सेम होंगे। हमने पढ़ा था ना, x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है ना, तो ये दोनों सेम ही आएंगे। सो ग्रीन वाइट क्या बनेगा आपके पास, फर्स्ट शुड बी ग्रीन, दैट विल बी 5/15 टाइम्स द सेकंड शुड बी वाइट, दैट विल बी 6/14। अब इसको भी मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू द फर्स्ट शुड बी वाइट 6/15 एंड द सेकंड शुड बी ये बी क्यों ब्लैक, अच्छा 4/14। तीसरा आपके पास आएगा, फर्स्ट शुड बी black, that is 4/15 times, second should be green 5/14। इस सारे को आप जरा कैलकुलेट करें, आपके पास यही चीज आएगी। Getting the same answer, 74/105। ठीक है जी। So मैंने whether you go by the 1 minus technique or solve it directly. I hope things are clear. A bag contains 5 white balls and 3 black balls. Marwan picks a ball from the bag at random and then replaces it. Find the probability that the ball is white. 5/8. Nomi picks a ball from the bag at random and then replaces it. She repeats this 120 times. Okay. Find the number of times the ball is expected to be white. So we need to find out the probability of white. Uh, 5/8 times 120. That's it. That will be your answer. Now, why you're multiplying 5 with 120? Cut it with like 2. 5 times 15 is 75. Okay, Oscar picks a ball from the bag at random. He replaces it and then picks a second ball from the bag at random. Find the probability that the balls are the same color. Okay, so it can be probability that can be white and white, or probability that can be black and black. So it's with replacement, so 5/8 times 5/8 plus 3/8, 3/8. Plus 9/64. That will be 34/64. That will be your answer. Just to simplify करने 217. Find the probability that the ball are not the same color. 1 minus this thing. So 32 minus 17/32. That will be 15/32. Priya picks 3 of the 8 balls from the bag at random without replacement. Find the probability that she picks 2 white balls and 1 black ball. Okay, 2 white and 1 black. It's better we should draw tree diagram here. ज़्यादा easy हो जाएगा। 3 picks आ गई है ना, black, white, black, white, black, white। अब हमने डिफाइन करना है, हमने क्या चाहिए हमें, 2 white and 1 black। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद वाइट Perfect. वाला बस इसका आना चाहिए। लेट्स सी हमारे पास क्या स्नैरियो बनता है।
आपके पास वाइट 5/8 था और 3/8 है, 5/8 एंड 3/8। यहाँ पे 5/8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5/8 आ जाएगा, 3/8 आएगा, 5/8, 5/8 and 3/8. Okay, so you get the black first, white second, and white second. So you're having like 3/8 times 5/8 times 5/8. ये विद रिप्लेसमेंट है ना कि विदाउट? ओ, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है भाई, तो ये तो चेंज होंगी प्रोबेबिलिटीज। ब्लैक पहले में आ गई, दूसरी वाइट 5/7, देन 4/6 विदाउट रिप्लेसमेंट है। 5/8 वाइट आ गई, ब्लैक 3/7 होगी, 3/7, एंड ये क्या होगा, 2/6। 5/8, अब ये आ जाएगा, पहली वाइट अगर आ गई तो दूसरी वाइट आए, दूसरी वाइट आएगी तो वो क्या होगा, 4/8, 4/7 सॉरी, और तीसरी जब आएगी तुम्हारे पास आना चाहिए 3/6। ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब आप करें जरा जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज ब्लैक वाइट वाइट, ब्लैक वाइट वाइट, इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8 टाइम्स 5/7 टाइम्स 4/6। देन यूर हैविंग वाइट ब्लैक वाइट, ये वाला 5/8 टाइम्स 3/7 टाइम्स 2/6। अब आप ये करें, वाइट वाइट ब्लैक, 5/8 टाइम्स 4/7 टाइम्स 3/6। ये सारी आपने ऐड अप कर देनी है बस, तीनों प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, विल गेट यू। इसे करें जरा, देखें क्या आ रहा है आंसर। 7 5, 5 और 12, 3 से भी जा रहा है, 3 2 6, 3 5, 3 5, 25/56। ओके, diagram shows 7 cards. Amir picks a card at random. Find the probability that the card shows the letter H. 0. There is no H here. Now the next is the letter B. How many B we are having? 1 out of 7. So Mika picks one of the 7 cards at random. She replaces it and picks a second card at random. Find the probability that both cards shows the letter I. She replaces it. So probability that I and I. So what is the probability that will get the I at the first one? 1/7 times the second by 7. I दो नहीं थे यार हमारे पास, एक तो नहीं है। Yeah. 2/7 टाइम 2/7, 4/49, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे किसी को क्लियर ना हुआ तो मुझे बताना लाजमी। अस्का मैडम, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, बाकियों को भी क्लियर है। जस्ट स्टॉप मी अगर जहाँ पे भी कोई चीज क्लियर ना हुई तो। Marcos picked two of the 7 cards at random without replacement. Find the probability that one card show the letter I and the other card show the letter N. Now there is no sequence. It means हमें फिर multiply by 2 करना पड़ेगा. Like probability that the one card show I and the other show N.
विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही तो एक चला गया, 6 रह गया, और n कितने थे हमारे पास, एक ही था n, और का मतलब है प्लस प्रोबेबिलिटी n कितनी थी 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/6, या 2/21। ठीक है, सबसे मेन चीज होती है आपकी ये स्टेटमेंट डेवलप करना। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू कार्ड शोज डिफरेंट लेटर्स। इसमें सबसे आसान ये है कि आप क्या करें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द टू कार्ड शो द सेम लेटर्स। सबसे आसान ये है। सेम लेटर्स कौन से आ सकते हैं, हमारे पास सिर्फ आई और आई हाय रिपीट हो सकता है, और ए भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ए ए प्लस प्रोबेबिलिटी आई आई। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, तो 2/7 टाइम्स 1/6 1/6 plus that is the same probability, 2 2 by times 2 7 times 1/6। ठीक है, so you can do 1 minus 2 into 2/7 times 1/6, 2 ones are 2, 3s 4 are by 6, 42 1 1 minus 2/21, so that will be 19/21. Got it? So instead of finding like the different colors thing, different letters, sorry, different letters, हम इसको ये कहते हैं 1 minus probability of the same letters. So Nina picks one of the 7 card at randoms without replacement. She continues picking card at random without replacement until she picks a card that shows the letter A. The probability that this occurs when she picks the nth card is 4/12. Find the value of n. जी, nth कार्ड का मतलब है चौथा कार्ड पिक करे, तीसरा कार्ड पिक करे, पहला कार्ड पिक करे। मैं जरा आपको बताता हूँ, लाइक उसने क्या कहा है, she continues picking card at random without replacement. You should pick a card that show the letter A. What is the probability of letter A? How many letter A we are having? 2. So मैं पहली बात लिखता हूँ, probability कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले ही कार्ड मैंने पिक किया तो वो क्या आ गया, A आ गया। What is the probability of that? That is 2/7. But my answer is not 2/7. So मेरा पहली अटेम्प्ट तो खत्म हो गई, मैं पहली अटेम्प्ट में नहीं ला सका A. Probability that in the second attempt I'll get in the second attempt I'll get the Y card. So पहला क्या होगा, not A and then A, second में वो आ जाए। What is the probability कि मेरा पहला कार्ड not A आए? How many not A's we are having? 1 5 2 3 4 5, yeah. So मेरे पास क्या बनेगा, मैं 4 लिख रहा था यहाँ पे। We are having 5/7, now it's without replacement, times, अब एक कार्ड निकल चुका है, ये कितने थे हमारे पास, ए 2 थे ना, अब इनको सिंप्लीफाई करें, 2 1s are 2, 3s are, so we'll get 5/21. Still it is not matching. इसका मतलब है सेकंड अटेम्प्ट बी, मतलब सेकंड मेरा कार्ड ए आ जाए तब भी नहीं आया, प्रोबेबिलिटी के थर्ड कार्ड ए आ जाए। ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी नॉट ए टाइम्स नॉट ए टाइम्स ए, ये आना चाहिए। सो व्हाट इज नॉट ए, 5/7 विदाउट रिप्लेसमेंट, एक गया इधर से एक गया इधर से भी, विदाउट रिप्लेसमेंट दो चले गए,
पीछे रह गए 5 और ए अभी तक हमारे पास स्टैंड बाय है। अब ये 5 से कटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और कोई कटिंग हो रही है 4 बाय। नाउ यू कैन सी दैट द प्रोबेबिलिटी मैच्ड। इट मींस कितने पे ये काम हुआ, वो तीसरे कार्ड, तीसरी अटेम्प्ट जब उठाएगी तो तब उसके बाद nth कार्ड का मतलब है थर्ड कार्ड विल बी द ए कार्ड। सो योर एन आंसर इज 3। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। Okay, जी. Lucia has two fair spinners. Spinner A is five-sided and numbers this one. B nine-sided and number the guy. Lucia spins the two spinner and record whether they land on a prime number. Complete the tree diagram. Spinner A में कितने prime है? One. That'll be 2 by 5. Second spinner इधर है. Prime कितने थे? 5 by 9. तो ये कितने होंगे? 4 by 9, 5 by 9, 4 by 9. ठीक है, तो ये आपने काम करना है. You'll get 2 marks here. Find the probability that the two numbers are both prime. Prime and prime. How I'm writing the statement? Probability that the first is prime and the second is prime as well. So 3 by 5 times 5 by 9. 5 5 cancel होंगे, 3 1 are 3, 3 3 are 9. 1 by 3. ठीक है जी. The two numbers are not both prime. दोनों प्राइम नहीं होने चाहिए. देखो, दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों प्राइम नहीं होने चाहिए. What should we do? 1 minus 1 by 3. देखो, दो इवेंट ही आ सकते हैं ना, या तो दोनों प्राइम होंगे या दोनों प्राइम नहीं होंगे. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी एड अप होके 1 होनी चाहिए. सो मैं ये वाला लॉ यूज कर रहा हूँ. 1 minus 1 by 3 विल बी 2 by 3. इज इट क्लियर? नंबर्स के हिसाब से अपनी वर्किंग को जस्टिफाई करवाया करें. लूसिया स्पिनर ए 120 टाइम्स. स्पिनर ए को 120 दफा वो स्पिन कर रही है. Find the expected number of times the spinner lands on the prime number. Okay. What is the probability that the spinner A will give us, like, for the prime number? That is 3 by 5 times 120. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 fours are 20. So 3 into 24. 3 fours are 12, 1 carry, 3 twos are 6, 72. Lucia spinner B twice. दो दफा उसने उसको घुमाया. Find the probability that the two numbers it lands on add up to 9 or more. 9 or more. अच्छा, आते हैं इधर. दो दफा उसने स्पिनर को घुमाया. सो 9 और मोर का क्या किया जा सकता है जी? 9 और मोर विल बी 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 नहीं 5 2 है. अच्छा, 9 और मोर में क्या सिनेरियो बनेगा? एक तो पहली बात है कि सैंपल स्पेस हमारे पास जितने ही हमारे पास हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना. 9 into 9, दैट इज 81. 81 टोटल सैंपल स्पेस आ जाए. ठीक है, अगर दो दफा वो करे. 9 और मोर, वो एड अप कर रही है, क्या कर रही थी? हाँ, ऑन एड अप टू 9 और मोर. तो पहली बात है, 3 3 3 वाले तो गए काम से. uh, नहीं, इसको इस तरह कट नहीं कर सकते क्योंकि 3 और 4, हाँ 3 और 4 भी गया काम से. 3 और 5 का बनेगा. ओके, 3 एंड 5, 3 एंड 5, ये नहीं, ये 8 बनेंगे 3 एंड 5. ये तो यार बड़ी इजी हो गया चीज. ओके, 4 एंड 4 वाले भी सारे गए. 4 एंड 5 वाला होगा तो गौर से देखना. 4 एंड 5, 4 एंड 5, इसी तरह का यहाँ पे भी हो जाएगा. 4 फोर्स हैं तो 4 इस तरह की लाइंस बनेंगी. फिर 5 एंड 5, 5 एंड 4 वाले भी होंगे. 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, ये वाले 5 हैं और ये वाले 4 के कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ. अब 5 और 5 वाले 9 और मोर ये वाले बनेंगे. जस्ट काउंट देम नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो 20 बन रहे हैं हमारे पास. 20 आउट ऑफ 81. ओके,
Future keeps spinning spinner B until it lands on a 4. जा रही है स्पिनर तब तक कि वो 4 पे लैंड न करे. Find an expression in terms of n for the probability that it happens on the nth spin. अब हमने nth टर्म का बताना है कि मतलब find an expression in terms of n. n के for the probability that this happen 4 जब आएगा वो nth टर्म nth स्पिन पे होगा. तो क्या किया जाए? लाइक हम प्रोबेबिलिटी अभी जरा मैं जज कराता हूँ. मैं भी nth टर्म को 1 2 3 4 से करता हूँ. प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट अ 4 ऑन द फर्स्ट स्पिन. हाउ मेनी 4 वी वर हैविंग? एक मिनट ऊपर देख लेते हैं कितने 4 थे. ये कौन सा स्पिनर है? बी. स्पिनर बी. स्पिनर बी में 4 थे 4 और टोटल थे 9. अब जरा गौर से देखो. फर्स्ट स्पिन में आ जाए 4/9. मुझे तो nth टर्म फॉर्मूला डेवलप करना है तो मैं सेकंड स्पिन पे जाता हूँ. भाई फॉर एग्जांपल सेकंड स्पिन पे आ जाए तो क्या होगा? सेकंड स्पिन का मतलब है पहले में ना आए और दूसरे में आ जाए. ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9. और दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9. यही है ना. इसमें कोई रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट तो नहीं चल रहा ना काम. स्पिनर है ना, स्पिन कर रहे हैं. तो देर इज नो रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट स्टफ. यू आर हैविंग अ सर्टेन नंबर्स जो उसके ऊपर हैं ही है. अच्छा थर्ड स्पिन पे लेके आता हूँ. पहले में ना आए, दूसरे में भी ना आए, तीसरे में आ जाए. फोर्थ स्पिन पे आते हैं. पहले 3 में ना आए और चौथे में आ जाए. अब आपको रेलेवेंस नजर आ रही है? लाइक इसको मैं nth टर्म फॉर्मूला इसका बनाना चाहूं तो क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे क्या लिखूं? nth स्पिन. nth स्पिन. तो देखो यहाँ फोर्थ स्पिन में कितनी दफा ये रिपीट हुआ है? 3 दफा. थर्ड तीसरे में आ जाए कितनी दफा ये रिपीट हुआ है? 2 दफा. सेकंड में आए कितनी दफा रिपीट हुआ है? 1 दफा. इसका मतलब है ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? जो भी यहाँ चीज लिखी हुई है इधर -1, 4 - 1, 3 - 1, 2 - 1, 1 - 1. तो क्या मतलब है कि ये जो 5/9 है इसके ऊपर पावर क्या रखनी पड़ेगी मुझे? n-1. और साथ आप 4/9 मल्टीप्लाई कर दें. मैं इसको आपको थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई. 5/9 इंटू 5/9 इंटू 5/9 इज व्हाट? 5/9 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4/9. 5/9 ये क्या होगा? 5/9 स्क्वायर्ड इंटू 4/9. ये क्या होगा? 5/9 इंटू 1 इंटू 4/9. नाउ इसको जरा मैच करें. वी वर हैविंग थर्ड में आए क्या लिखा हुआ है? 2. तो 2 कैसे लिखा जा सकता है? 3 - 1. सेकंड में आए तो ये क्या लिखा हुआ है? 1. तो 1 कैसे लिखा जा सकता है? 2 - 1. फोर्थ में आए तो क्या होगा? 3 कैसे लिखा जा सकता है? 4 - 1. तो n में आए तो कैसे लिखा जा सकता है? n - 1. ठीक है. तो ये आपके पास चीजें आ जाएंगी. सो द आंसर विल बी 5/9 n-1 टाइम्स 4/9. दिस विल बी योर आंसर. बस ये इसमें हमारे पास शॉर्टकट है. ओके. So we're having like two dice. Write down the probability that it lands on number 6. Number 6. How many 6 we are having here? 1 by 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. Dice age rolled 150 times. Find the number of time. 3 twos are 15, 25. Okay. Now dice A and B are each rolled once. Find the probability that the two numbers they land on have a total of 6. Okay, the two number they land on have a total of 6. दोनों एक एक दफा स्पिन हुए. सो क्या स्नैरियो बनेगा? ये कितने? 6. ये कितने? 6. दोनों को मल्टीप्लाई कर लें. दोनों एक एक दफा स्पिन हुए ना तो इस तरह नहीं बन सकेंगे ये. डाइस ए के नंबर्स आप यहाँ लिख लें. 1 2 2 3 6 2 3 3 4 4 4. ये नहीं होने चाहिए. सैंपल स्पेस शुड बी 36. ये तो आ गया 36 इधर. अब हमने काउंट करने के सम कितना हो? टोटल ऑफ 6. जी टोटल ऑफ 6. अब यहां से जरा देखते हैं. ये लाइन तो नहीं हो सकती.
टू किसी के साथ भी ऐड होकर 6 नहीं बना रहा, थ्री थ्री के साथ ऐड होकर 6 बना रहा है, थ्री यहाँ पे भी थ्री के साथ ऐड होकर 6 बना रहा है, फोर टू के साथ बनाएगा, 1 2 3, और इधर भी 4 है, और ये भी 4 ही था शायद जो मैंने 9 लिखा हुआ है खूबसूरत सा। So how many? 9, 10, 11. So it's like 11 by 36. So this working should be visible. ठीक है, जो मैंने स्पेस डायग्राम यहाँ बनाई हुई है ना, वो आपने यहाँ पे बना के तो प्रॉपर विजिबल करना है, बिकॉज 3 मार्क क्वेश्चन। ये ना वो चैलेंज कर दे के डायरेक्ट आंसर्स लिख रहे हैं आप। सो हमारे पास क्या आएगा? 11/36। अब चलते हैं नेक्स्ट में। Find the probability that when the two numbers they land on have a total of 6, both numbers are 3. The probability when the two number they land on have a total of 6, टोटल ऑफ 6 होने चाहिए, और फिर उसके बाद बोथ नंबर्स आर 3। टोटल ऑफ 6 कितने नंबर्स थे हमारे पास? 11, यही बात है ना। अब 11 सैंपल स्पेस आ जाएगा, उसमें से कितने 3 वाले थे? एक दो, दोनों में जो 3 3 आ रहे थे, सो वी आर हैविंग 2/11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन द टू नंबर्स दे लैंड ऑन हैव अ टोटल ऑफ 6, दोनों का जो 6 आ गया है, बोथ नंबर आर 3। सो जो टोटल ऑफ 6 वाले हैं वो कितने थे? 11। उसमें से कितने जो हैं वो ऐसे होंगे जिनमें दोनों डाइस पे 3 आ रहा हो? तो ऐसे दो ही थे ना ये वाले, ठीक है। Dice B is rolled n times. The probability that on the nth roll it first land on number 3 is 32/729. Find the value of n. G. Dice B roll n times. The probability that on nth roll it first land on number 3. Okay जी। So the probability के वो पहले पे ही लैंड कर गया 3 पे। 3 कितने थे? डाइस बी था ना ये। 3 कितने डाइस बी के बाद? 3/6। ओके, ये तो नहीं है 3/6। सेकंड पे आए, पहले पे 3 ना आए, दैट विल बी 3 ना आए तो वो भी 3/6 ही होगा, और दूसरे पे 3 आ जाए, सो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 है। ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम? कितने 3 थे जी? दो है ना यार। वन बाय फोर। अब ना आए तो दैट विल बी 4/6, और आए तो वो होगा 2/6। ठीक है, 1/3, 2/3, तो 2/9 आ गया। मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, 2/9। तो सेकंड थ्रो में भी नहीं आया 3, थर्ड में आ जाए। पहले में ना आए, दूसरे में ना आए, और तीसरे में आ जाए, ठीक है। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3, 3 3 3 कितना होता है भाई? 27। 2 2 4, 4/27। चौथे में आए। अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ 4/6 आई एम राइटिंग 2/3। पहले में ना आए, दूसरे में ना आए, तीसरे में ना आए, चौथे में आ जाए, ठीक है। सो 2 का क्यूब होगा 8, और 3 का क्यूब होगा 27 टाइम्स 1/3। ये भी नहीं आ रहा, देखो ऊपर 32 तो नहीं आ सकता ना हमारे पास अभी, सो ये भी गलत हो गया। पांचवे में करते हैं। 2/3 रेस टू द पावर क्या चल रहा है? 5। 4 थे तो 3 है, तो 5 में तो 4 होंगे। सो 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। 3 की पावर 4 कितनी होगी? 27 इंटू 81 होगा, टाइम्स 1/3। 16 बाय सही होगा, तब भी ये भी नहीं आ रहा, 16 हमारे पास है।
6 करें तो 2/3 raised to the power 5 times 1/3. 2/729 is the value of n. Right.